Good morning, everybody. सबको शुभोदय। Today we'll read from Colossians. कुलूसी के पत्र में से हम पढ़ेंगे Colossians chapter 1, कुलूसी का पहला अध्याय verse 15 to 18. 15 से लेकर 18 वचन तक हम देखेंगे। Today we'll be talking about the preeminence of Christ. और हम यीशु मसीह का जो अधिकार है उसके बारे में हम बात करेंगे। So let's turn to Colossians chapter 1, verse 15 to 18. I'll read for you in English. कुलूसी का पहला अध्याय 15 से 18 तक हम देखेंगे। It says, "Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature." In verse 15, we see that Jesus Christ is having all power. He is the invisible God, image of the invisible God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के अंदर सारे ताकत और शक्तियाँ हैं और हम देखते हैं अदृश्य परमेश्वर का वो प्रतिरूप है। The firstborn of every creature. और वो सारे जो भी सृष्टि किया गया है सारे लोगों से वो पहले है। That means God becoming man. इसका ये मतलब है कि कैसे परमेश्वर मनुष्य बनते हैं। And he has all powers, like as I said, he's having power of healing. चंगाई देने का ताकत है और सारे ताकत उनके अंदर है। He raised people from the dead. उन्होंने मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया है। He walked on the water. वो पानी पर चले हैं। And he has all the attributes of God, like holiness, purity, righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, ये सारे परमेश्वर के गुण जो है हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। His attributes of mercy. और वो बहुत ही दयालु है, grace, अनुग्रहशील है। And in verse 16, 16 वचन में, for by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Here we see that through his power he had created all those things. और उनमें जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने सारे चीज़ों की रचना की है। Whatever we see, the solar system, और जो भी हम देखते हैं हमारे आंखों तले, the sun, moon, stars, the galaxies, जो सूरज हम देखते हैं, चांद देखते हैं और आकाश में जिन चीज़ों को हम देखते हैं, the oceans, everything that are visible and invisible, they are created by Jesus Christ. और समुंदर भी, जो चीज़ें हम देख सकते हैं और नहीं भी दिखाई पड़ती है लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन चीज़ों की रचना की है। We'll read verse 17. और 17 वचन में हम देखेंगे, And he is before all things, and by him all things consist. So he was before everything. He was before the beginning. और वचन कहता है कि सब वस्तुओं में वो प्रथम है, सारे चीज़ों से पहले वो थे। And in verse 18. और 18 वचन, And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Here we see that that in all things he might have preeminence. और यहाँ पे वचन कहता है कि सभी बातों में वही प्रधान ठहरे। In verse 16, the last part, it says, all things were created by him and for him. और 16 वचन में अगर हम पढ़ेंगे वो कहता है कि सारी चीजें उनके द्वारा और उनके लिए ही रचना की गई है। So three things are very important to remember. और 3 चीजें बहुत ही प्रमुख है हमें याद रखने के लिए। The first thing is all things were created by him. पहला चीज ये है कि सारे चीजों की रचना परमेश्वर ने ही किया है। That includes you and me. और उसमें हम और तुम भी शामिल हैं। Second, a very important thing to remember is we were created for him. और दूसरी बात यह है कि हमारी रचना की गई है उनके लिए। We were created for his purpose. और उनके मकसद को पूरा करने के लिए हमारी रचना की गई है। And the third very important thing is that in all things he might have the preeminence. और तीसरी बात यह है कि सारे चीजों में वही प्रधान रहे। So the meaning of preeminence we'll see. और प्रधान रहने का मतलब हम देखेंगे, Having the highest paramount rank. और सबसे ऊंचे पद में या ऊंचे स्थान में रहना, having dignity, और बहुत मर्यादा के साथ हम रहते हैं, outstanding, और सब लोगों से हटकर हम रहते हैं, supremacy, और सारे चीजों के ऊपर अधिकार हम रखते हैं। So basically Jesus Christ should have all authority in our lives. और हमारे जीवन में भी हमें यीशु मसीह को सारे हक देने चाहिए। In all my thinking,
और हमारे हर एक सोच में should begin with Him. उनसे वो प्रारंभ होनी चाहिए। And not only begin, it should end with Him. केवल प्रारंभ ही नहीं, उसका अंत भी यीशु मसीह में होना चाहिए। I need to enthrone Jesus in my life. और यीशु मसीह को मेरे जीवन में वो सिंहासन मुझे देना चाहिए। So Jesus Christ, like He said before going to the cross, not my will be done, but let your will be done. और क्रूस के पास जाने से पहले यीशु मसीह ने ये बातें कही थी कि पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। So Jesus Christ's will should be first in our life and not our will. और हमारी इच्छा नहीं लेकिन यीशु मसीह की जो इच्छा है वही प्रदान होना चाहिए हमारे जीवन में। So in all my decisions, Jesus should be first in everything. और मेरे हर एक निर्णय में यीशु मसीह का पहला स्थान होना चाहिए। So there is no place for second opinion or third opinion. और ऐसा जब कहा गया है इसका ये मतलब है हम कोई दूसरे लोगों के बातों को नहीं मानते हैं। So this has to be the foundational commitment of every Christian. और ये हमारा नींव होना चाहिए हर एक विश्वासी का। If you see in the world, people have eminence. और हम देखते हैं यहाँ पे जो लोग हैं उनमें अंतर दिखाई देता है। What is the meaning of eminence? Eminence means having fame. और यहाँ पे इस संसार में हम देखते हैं कि लोग जो है वो बहुत उनका बड़ा पेशा होता है। They may be superior in a particular field. वो हो सकता है कि एक प्रांत में उनका जो अधिकार है वो बहुत ही बड़ा हो। There are people who hold high ranks in the world. और इस संसार में भी लोग जो है वो बड़े बड़े पेशे को वो लोग उसमें शामिल है। In the field of politics. और हम देखते हैं राजनीति में, In the field of military and in the field of cinema. और मिलिट्री में या सिनेमा में, इन सारे चीजों में। So their contribution to our life, may be nil. और वो जो भी करते हैं वो हमारे जीवन में शायद थोड़े ही वक्त के लिए होता है। For our personal life, there is nothing. लेकिन उनसे निजी रूप से हमारे निजी जीवन के लिए कोई फायदा नहीं है। Sometimes they receive honor, appreciation from us. और थोड़े वक्त ऐसा होता है कि वो हमारे द्वारा सम्मान पाते हैं, मर्यादा पाते हैं। But we have Jesus Christ as our Lord God, who should have preeminence in all things. लेकिन यीशु मसीह जो हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु है, उन सारे चीजों में हमें उन्हें प्रधान ठहराना चाहिए। Why should Jesus have preeminence? और क्यों ऐसा क्यों कहा गया है कि यीशु मसीह को प्रदान होना चाहिए? We'll see in Colossians same chapter 1 verse 21 to 22. और हम देखेंगे कुलुसी का पहला अध्याय 21 और 22वें वचन में। And it says, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. Here we see that because of the finished work of the cross by Jesus Christ. और यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनके शरीर द्वारा क्रूस के ऊपर क्या कार्य किया है। He need to have preeminence. और इसीलिए उनको प्रदान रहना चाहिए हमारे जीवन में। Because he removed us from the shameful, sinful pit of hell. क्योंकि ये जो नरक का शर्मिंदगी से भरा जीवन है उससे उन्होंने ही हमें छुड़ाया है। He has clothed us with the robe of righteousness. और धार्मिकता का वस्त्र जो है वो हमारे ऊपर उन्होंने डाला है। And he has given us salvation. और उन्होंने हमें उद्धार दिया है। Even if you were the one and only sinful person, like the lost sheep, Jesus would have come for you. और जैसे वो भटका हुआ वो जो भेड़ था, उसके जैसे अगर हम ही एक अकेले इंसान होते जो पापी था, फिर भी यीशु मसीह एक इंसान के लिए आते इस धरती पर। So no one has done such a mighty, marvelous job of loving a sinner. और किसी ने भी अभी तक इतना महान प्रेम एक पापी के प्रति नहीं दिखाया है। And taking our judgment upon himself. और हमारे न्याय को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। For this reason, Jesus should have honor. और इसी कारण से यीशु मसीह को प्रधान ठहरना है। First place. और पहला स्थान देना First चाहिए। priority. और प्रथम स्थान देना All चाहिए। glory. और सारा महिमा उनको मिलना All चाहिए। honor in all we do. और सारा मर्यादा सम्मान उनको मिलना चाहिए। So in all our decisions, his will should be executed. और हमारे हर एक निर्णय में यीशु मसीह की इच्छा को हमें स्थापित करना है। Whether in job, हो हालांकि वो नौकरी हो relationships, या कोई संबंध हो career, या कोई हमारा भविष्य का मकसद हो, Christ should have the preeminence. यीशु मसीह को उसमें प्रधान हक मिलना चाहिए। Supremacy in all areas of my life. और वो प्रथम होना चाहिए हर एक स्थान में हमारी जिंदगी में। Not only in some part of my life, but in all part of my life. केवल मेरे जिंदगी के थोड़े हिस्सों में नहीं बल्कि हर एक हिस्से में। There should not be any selfish decisions. और कोई भी स्वार्थी निर्णय हमें नहीं बनाना चाहिए। And we can make some selfish decisions in some
important areas without giving preeminence to Jesus. और यीशु मसीह को प्रधान स्थान न देते हुए हम थोड़े स्वार्थी निर्णय ले सकते हैं प्रमुख बातों में। We all have prominent people in our life, और हमारे जीवन में भी थोड़े महत्वपूर्ण लोग हम रखते हैं, like parents, children, family members, friends. जैसे कि माता पिता, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह। So Jesus Christ should not be treated like the prominent person in our life. और यीशु मसीह को हमें आखिरी स्थान नहीं बल्कि पहला स्थान देना चाहिए। You know, some start, starting with Jesus, beginning with Jesus, और थोड़े लोग शुरुआत तो यीशु मसीह के साथ करते हैं, but it will not end with Jesus. लेकिन उनका अंत यीशु मसीह के साथ नहीं If होता you है। see Judas started with Jesus but ended himself, for self. और हम देखते हैं यहूदा ने अपना जीवन यीशु मसीह के साथ प्रारंभ किया, लेकिन उसका अंत उसके स्वार्थ में था। His testimony had eternal shame. और उसकी गवाही जो है वो निरंतर शर्मिंदगी को लाती है। When we are created for him, for his plan and glory, we need to live for him. जब हम उनके मकसद के लिए, उनकी महिमा के लिए रचना किए गए हैं, हमें उसको पूरा करना चाहिए। In his plan, there may be some shame. और उन परमेश्वर के जो भी योजना है उसमें शर्मिंदगी हो सकती है। Shame from the world. और संसार से हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, Which we have to bear. और जिसका सामना हमें करना है और सहना है। Example like Mary, mother of Jesus Christ. और उदाहरण के लिए यीशु मसीह की जो धरती में जो माँ थी मरियम के बारे में, Because of the virgin birth, she had to bear reproach, shame in the plan of God. वो कन्या थी लेकिन वो गर्भवती थी और उसने परमेश्वर के उस योजना को स्वीकारा। God in his time, he will turn our shame into glory. परमेश्वर उनके समय में हमारी शर्मिंदगी को महिमा में बदलेंगे। So everyone should start with Jesus, for Jesus and for his glory. और सबको यीशु मसीह के साथ शुरुआत करना है उनके लिए और उनके मकसद को पूरा करने के लिए। And it has to end also with Jesus Christ. और वो खत्म भी होना चाहिए यीशु मसीह के साथ। So my living on earth should bring pleasure, honor to him. और जो मैं धरती पे अपना जीवन बिताता हूँ वो परमेश्वर को खुश करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। This means I rearrange my priorities in God's interest. इसका ये मतलब है परमेश्वर के दिलचस्पी और चाहत के अनुसार मैं अपने अहमियत को रखूंगा, And not in my selfish interest. और ना कि मेरे स्वार्थ में। And I will be a blessing for his kingdom and not for my selfish gain. और मेरे स्वार्थी लालच के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए मैं एक आशीष ठहरूंगा। So we are created for him, हम सब उनके लिए रचना किए गए for हैं, his plan, उनके मकसद के लिए, and we need to live for his glory and honor. और उनके महिमा के लिए, सम्मान के लिए हमें जीना चाहिए। So that is like the preeminence of Jesus Christ. और यही मतलब है यीशु मसीह को प्रधान ठहराना अपने जीवन में। God bless this portion. परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। Amen. धन्यवाद।